निकल दी है, फिर क्यों केवल आएगा उधर? केवल जी को तो ऑलरेडी आपने रिमूव कर दिया है कमिटी से, तो हाउ कैन दे कम एंड सिट हियर? केवल को किसने रिमूव किया? आपने खुद ने डाला है। आपने खुद ने मैसेज डाला है। क्या डाला है? केवल has resigned. We have removed him. I have not resigned. He has not resigned. He has removed him. Instead of notice will receive that notice will come to down. So they are already busy with the DTR office. हम लोग ने रिमूव नहीं किया। तो please represent. कमेटी मेंबर है अभी भी वो आके बैठे ही मैडम हम केवल जी से बात कर रहे हैं। उस दिन जब मैंने बात करना शुरू किया तो सेक्रेटरी मैडम उठ के चले गए थे। करेक्ट? किसने बोला कमेटी में? कौन बोल रहा है? हम लोग बोल रहे हैं। मैडम आप लोगों ने मुझे नोटिस भेजा और ग्रुप से निकाल दिया है। नोटिस किस बात का भेजा? नोटिस भेजा है फॉर द इलीगल पेनल्टी। हाँ वो तो भेजेंगे ही अगर आपने पेनल्टी नहीं भरा है। आपने सब लोगों को बोला था अभी Are you coming here? No, you have removed me. We have not removed you. Don't play these games. Don't We play have not removed you. Why are you assuming? They are reacting right now. They are reacting right now. We have not removed you. इसका बहिष्कार करते हैं। इसका हम बहिष्कार करते हैं। Assume क्यों कर रहे हो? Assume मत कीजिए ना। मेल है ना, मेल में डिस्क्वालिफिकेशन लिखा होगा। रिमूव्ड कहाँ पे लिखा है? रिमूव्ड कहाँ पे लिखा है? मुझे ग्रुप से निकाला है। नहीं निकाला। व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने से क्या आप कमेटी से बाहर हो गए? निकाला लेकिन आपने। मेरी मर्जी। व्हाट्सएप ग्रुप postponed. This meeting is postponed. Thank you. How many people here are in the favor of dissolving the existing committee? Please raise the hand. Everybody. Okay.
majority, right? So now, good. Clap guys, clap for this. Number one. We are circulating a document. We are circulating a document for all of us who are not in favor and who are in favor must sign. There are 2 tables. Okay, this will be submitted to all the authorities concerned. So we are passing the first resolution today in the AGM year 2025 that the current committee is dissolved. Yes. Give me a shout out, please. Give me a shout out. Now, this paper will be circulated. In what capacity are you resolving? You are. I asked you to follow the procedure. Correct. I do not resolve it. I am. You are right. Process I am Absolutely correct. But you cannot be, just because there is a majority, No, you cannot be sir. compromised. Sir, we cannot face all this. We are not. Nobody It is our committee. Okay. We formed the committee. We all formed the committee, right? We are taking decision today. Yes. We are taking decision today that we want to resolve. Okay, that is the reason. That's it. And this is not the first time. We had a meeting with our Wing 8 last time. The same thing happened. When questions are raised, we either look out for shoulders or we show our back. We don't want this kind of a committee which cannot function. We want people who will take care of us. If you can't, that's a no. आप लोग किसी को हेल्प मिला है? अभी तक किसी को हेल्प मिला है? अभी नहीं मिला है सर। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। सर मैं क्या बोलूं? गाली देके मतलब ही नहीं कोई कुछ काम कर पूरा सिर्फ पैसे का आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दीजिए प्लीज आप यहाँ सर्कुलेट कीजिए साइन कीजिए नाउ यू आर आस्किंग फॉर द प्रोसेस सो द process here is that majority of the quorum, not even majority, I think all of them, right, if I am not wrong, all of them have passed the resolution for a reason. The reason is मैं आपको बताता हूँ सर और सब लोग सुन लीजिए। हम फायर की चीज को थोड़ी देर के लिए मैं बाकी में रखता हूँ, राइट। अभी तक आपको जो भी कम्युनिकेशन मिला है वो यही मिला है कि पुरानी कमेटी ने ये नहीं किया, पुरानी कमेटी ने वो नहीं किया, उसकी वजह से फायर लग गया, उसकी वजह से फायर की जो उसको जो कंट्रोल करना था यही हमने सुना है, करेक्ट। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैं यहाँ पर वो पुराना नया का झगड़ा करने नहीं आया हूँ, बिकॉज इट इज इररिलेवेंट। जो हो गया वो हो गया। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट इन द फायर, इन द इंसिडेंट ऑफ फायर, there is a report. There are two reports. Gentlemen, ladies, there are two reports which are usually received from the fire department. Mr. Girish Sarke is the ex-CFO. He has just been transferred. So he has written two letters to us. First letter is the fire incident report. The second report is the fire audit report. अभी ये रिपोर्ट आया था कब, ये जरा एक बार इनको पूछ लीजिए। आप लोगों को पता है, डेट लिखा हुआ है। विंग 8 के साथ पहले शेयर हुआ, वो भी एक मीटिंग जहां पर विंग 8 ने वो पुश किया था, इन्होंने नहीं किया था। और वो मीटिंग में हमारे साथ एक रिपोर्ट शेयर किया गया। वो रिपोर्ट में बहुत सारे चीजें लिखी हुई है कि जो फॉलो नहीं हुई थी, राइट। और उसको 15 दिन में इनको रिपेयर करके या ठीक करके फायर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्ड करना था। ये रिपोर्ट आप लोगों के साथ तब शेयर हुई जब अलग अलग विंग के लोगों ने अपने अपने ग्रुप में डाला। So is this transparency? This is not transparency, correct? Shame. Thank you. Then हमें ये बताया गया, हमारे यहाँ एक 2203 जो अनफॉर्चुनेट जो फ्लैट है जहाँ पर आग लगी थी, उनके लैंडलॉर्ड, उनके जो ओनर यहाँ पर गिरीश जी यहाँ पर, हेमंत जी यहाँ पर है और उनकी वाइफ भी यहाँ पर है। ये लोगों ने इनसे रोज पूछा है, इनको ईमेल में दिक्कत आती है। He is not a technically sound guy. उनको ईमेल में दिक्कत आती है, वो रोज जाते थे कि सर मेरा इंश्योरेंस जो है वो बोल रहा है कि जो हमारा जो सोसाइटी का इंश्योरेंस है उसका कॉपी दो। ये इन्होंने एक ने नहीं पूछा, सुमित जी ने पूछा, विंग 8 के बहुत सारे लोगों ने पूछा है, इनफैक्ट विंग 9 के लोगों ने भी पूछा है कि भाई इंश्योरेंस का कॉपी हमें दीजिए। कल एक ईमेल आया था हमें, हम ट्रांसपेरेंट है, करेक्ट। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ होगी
जहां पर वो इंश्योरेंस का पॉलिसी हमें शेयर किया जाता है। आज तक 28 लोगों ने लीन आर्ट से ईमेल किया हुआ है। किसी को मिला है तो मुझे हाथ उठा कर नहीं मिला। रीजन तो इनको पता होगा ना सर। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इज माय पॉइंट। मैडम आपके और मेरे फीस से पैसे से वो पॉलिसी आया है। सो नो कॉन्फिडेंस, व्हाट कॉन्फिडेंस, व्हाट ट्रांसपेरेंसी है। Exactly. What confidence? Shame. See, there was also an allegation made by this committee that there is a kind of fraud in tune of some few crores rupees by the earlier committee. What the hell have we done? All this while, अगर हाँ तो आप प्रूव कीजिए अगर fraud है तो. इतना time बैठ के every time you cannot blame old committee saying that the fraudulent transaction was. तो सर एक मिनट, हम लोग पीएमसी ने क्या नहीं किया सर। सुजीत जी पीएमसी ने क्या नहीं किया और इन कमेटी ने क्या किया है उसमें अगर जाएंगे तो बरसों लग जाएंगे। हावेवर क्योंकि मैं चेयरमैन था पुरानी कमेटी में, मैं दो हाथ जोड़कर आप सब लोगों के सामने बोलता हूं कि मैं इनकॉम्पिटेंट था, मेरी कमेटी इनकॉम्पिटेंट थी, हम लोगों ने गलती की होगी, ठीक है। लेकिन सर हमने 2.5 करोड़ का एफडी बनाया है। मैं हमारे रिक्वेस्टेड मेंबर्स को जो कमेटी में हैं उनको पूछना चाहता हूं कि सर 1 लाख का एफडी हमने 1.5 साल में बनाया है तो बता दीजिए। नहीं बता दीजिए। और सर 2.5 करोड़ रुपया सोसाइटी में ही था। इन्होंने कल के ईमेल में भी लिखा है ना कि ये सर हमारा एक एफडी मीरा रोड के ब्रांच में था एचडीएफसी में और वो मैच्योर हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया है। इट वाज नॉट ब्रोकन। इनको फैक्ट्स नहीं पता है। अच्छा आपके 3 एसडीएम हो गए, आपके 3 एसडीएम हो गए। 3 एसडीएम में ये लोग मेंटेनेंस के अंदर उनका वो हिसाब नहीं दे पाए ठीक से। 1.5 करोड़ की गलतियां करते हैं। सर रिजल्ट पास हो गए तो आपने गलतियां निकला। तो मेरा पॉइंट ऐसे नहीं होता है, नॉमिनेटेड मेंबर अबे कोई ऐसे इन्वॉल्व नहीं करते। ये हमारे कमेटी मेंबर थे, इनको ऑफिस में मारा गया, इन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया। आपका सही हो गया केवल जी। नहीं हुआ हमारा टाइम है अभी हमारा साइड है। You are out. We are now out. Everybody is fast. We are not out. Yes, मैडम जाओ कीजिए इनको, प्लीज जाओ कीजिए। ये अपना खुद का रिओर्डिनेट कराने के लिए सब लोग धंधा कर रहा है। सॉरी, इट इज 100%. Now if you listen to me, AGM ये लोगों की मीटिंग है। AGM is our meeting, not their meeting. If we are not satisfied, we have the right to be there. It is our meeting. Who walked out first? तब नहीं सोचा, अब क्यों सोच रहे हैं? तब सोचा नहीं आपने? Our members willing to listen. No! We are not interested. First, these people need to learn how to speak. हमारा सुनना बाकी है। अगर ये कोई रिजोल्यूशन आके ऐसे पास कर देते हैं कि भाई अभी तुम लोग आउट हो जाओ और हमारा सुना हो गए, हमारा सुना क्यों बोलते आपने हमारी सुनी बात। I am talking to people who don't Every time this happens. आप लोग बात ही नहीं करने दे रहे हो। ये ऑर्डिनरी पोस्ट है गाइस। ये ऑर्डिनरी पोस्ट है। इनको just a minute. आप तो चिल्ला के बात मत I am highly surprised. In spite of all members are against it, what is the vested interest they have for continuing in this committee? I am highly confused. You are already told you guys that the meeting is cancelled.
हेलो हेलो सुनिए सुनिए, इनकी दादागिरी जो है ना, और एक मैं शेयर करना चाहता हूँ आपको, जो इन्होंने इंडेक्स 2 की कॉपी मांगी थी सबसे, तो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए इंडेक्स 2 की कॉपी और एग्रीमेंट। मेरे साथ इंसिडेंट क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे बोला कि मैं 3 टाइम दिया है और फिर वापस मेरे को पूछा जाता है तो कमेटी में एग्जैक्टली काम क्या होता है। तो इन्होंने उसके ऊपर जवाब देने के बजाय मेरा मैसेज डिलीट कर दिया विदाउट एनी कंसर्न, ओके। और उसके बाद में मैंने पूछा कि ये कमेटी जो है वो सब मेंबर्स की है, ये मेंबर्स की है, तो मेंबर्स को बोलना जरूरी है कि नहीं है। तो विदाउट कंसर्न इन्होंने डिलीट किया। इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने अपने पास रूलिंग लिया अपने पास, ये होगा ऐसा गलत है ना, ये तो शेम है। सर मैंने 5 बार इंडेक्स 2 की कॉपी दिया है। मेरे हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई थी, मैंने 5 बार इन लोगों ने मांगा, मैंने 5 बार दिया है। समझे? आपके यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद भी दिए, उसके बाद भी मैं दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं। मैंने 5 बार इंडेक्स 2 की कॉपी दिया है। Latest current incident, I will explain it. Latest current incident, I will explain it. Ring number 31 में before 2 to 3 days एक फायर इंसिडेंट हुआ है। 1 मिनट before 2 to 3 days, before 2 to 3 days एक Ring 31 में 19th फ्लोर पे फायर इंसिडेंट हुआ है। उन लोगों ने जस्ट वो लेडीज प्रेशर कुकर में दाल रख के चली गई आउटसाइड, उस टाइम पे स्मोक हुआ और लूटर बच गया। अलार्म बजा, उन्होंने प्रिकॉशनरी ऊपर गए सब लोग और चेक किया। वो लेडी को पूछा कॉल करके, उसने बोला मैं नहीं हूँ बाहर, चाबी लिया, खोला, बंद किया सारा चीज। ये होता है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी उन्होंने उनका जो सोसाइटी का सेक्रेटरी एंड चेयरमैन, उन्होंने ये चीज बोला है कमेटी मेंबर ने कि विंग 8 का इंसिडेंट होने के बाद हम लोगों ने एक्टिवली सब लोग मिलके पूरा करके दिया है और अभी वो लोग सेफ है। अब क्या हम लोग सेफ है लखनऊ में? उन्होंने ये इंसिडेंट के बाद प्रेरणा लिया और सीखा। हमने क्या सीखा इनसे? कुछ नहीं, और उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं, खाली जवाब। अरे मैं खुद था उस दिन 22वें फ्लोर पे जब भी फायर इंसिडेंट हुआ। मैंने 6 बार कॉल किया, आई हैव रिकॉर्डिंग मैसेज, कॉल भी किया, नथिंग रिस्पॉन्डिंग फॉर दैट पीपल। उसने कॉल नहीं उठाया। नीचे आके मेरे पैर थरथरा रहे थे, मैं नीचे आके बोला कि दीपेंद्र किधर है, पाटन का रंग दे। उन्होंने बोला दीपेंद्र इधर ही जाओ हम लोगों के साथ में। क्यों नहीं उठाया? मैं इतना अनपढ़ है कि मेरे पास वो रिंगिंग जा रहे हो, वो नहीं उठा रहे। पूरा फायर इंसिडेंट से मैं बाहर निकला है 12 लोगों को लेके। वो बिजी थे, सोसाइटी का काम कर रहे थे। वो इधर वॉकिंग कर रहा था जॉगिंग ट्रैक पे। अभी मैं बात करूं? 3rd August we received a report about the status of fire alarms. 3rd August, this was circulated to us on 16th September. अगर यही चीज 10 दिन पहले सर्कुलेट हुई होती, एक्शन ली गई होती, maybe a person would not have died. Damage would have been lesser. It is just to be thankful we are not going putting up an FIR against them. This amounts to a culpable homicide. Who is responsible for this? And in spite of what they wanted, very appreciation for what? सुमित, वो बोल रहे डाल दो, FIR डाल दो बोल रहे। Structural stability report is very important. ये पता ही नहीं था, ये इनको पता ही नहीं था। और जब इन 8 का मीटिंग हुआ तब इनको पता था। उसके पहले उनका मैसेज है कि लोडा is doing structural stability. लोडा को कुछ नहीं पता। लोडा is a developer. He is not a structural consultant. We don't want this committee, correct? So जाने दो। So basically इनको structural पता नहीं है। They have appreciated Lodha, saying that Lodha did a good work. Anybody agrees here that Lodha did a good work? आपका मैसेज है, आपका। So basically what I'm saying is they are not competent. अगर आप ऐसे ही रहोगे तो और एक फायर होगा, भगवान न करे, और हम यही सुनते रहेंगे। 3 अगस्त को आया है रिपोर्ट, आपको सितंबर में क्यों शेयर किया गया? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? What transparency are we talking about? 45 days. और जब ये रिपोर्ट भेजा इन्होंने एक फॉरवर्ड रिपोर्ट भेजा, मेरे घर पे बोल रहे कि इन्होंने
इंस्पेक्शन कराया, ना ही वो डॉक्यूमेंटेशन कोई साइन किया है, ना ही मेरी फैमिली को पता है। ये झूठ बोलकर एक फ्रॉड वेंडर को लेके आते हैं और वो हमारे ऊपर झूठा वेंडर का सर पे रख देते हैं। और एक चीज देखिए, ये अभी एक जेंटलमैन ने मुझे दिया है, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता है, एंड आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम क्रॉसिंग सम लाइंस हियर, बट देयर इज एन एंट्री, इट सेज तनवीर is entering for intercourse. These are the words which are being used. So अगर हम अपने सिक्योरिटी को अगर नहीं समझा सकते हैं, अगर नहीं मैं सुनो, मैं बताता हूँ ना भाई, मैं बताता हूँ तुमको क्या हुआ मेरे घर। I have raised many times कि ना बॉस इसका क्या है करके। सुनो, अरे भाई सुनो तो सही। एज ए लेडी आप कमेटी मेंबर में क्या कर रहे हो मैडम? मैं आप लोगों के खिलाफ ना पॉस्को में एक्ट कर लूंगा, फाइल में एफआईआर अगर करता है नहीं मिला ना, बिकॉज वो ये सिक्योरिटी वाला है हनीफ, ये ना मतलब ना ये बंदा ना इतना कॉन्फिडेंट है कि पूछो मत। उसने मेरे को धमकी दिया, बोला कि जो तेरे को करना है कर ले करके। और ये बंदा मेरे को 100 आदमी के सामने बात करता है ऐसा। और ये तो जेंटलमैन और एक चीज, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है अपना हाउसकीपिंग एजेंसी, ये जो 2203 में से जो भी डेब्री निकला है, राइट? हाँ निकालना ही है, लेकिन हम सुना के निकालेंगे ना सर। तो जो डेब्री निकला है, वो डेब्री में से लोखंड का भंगार निकाल कर बेच रहे हैं। नंबर 1, कोई किसी की जान गई है और हाउसकीपिंग, एंड आई गॉट द रिकॉर्डिंग प्रूफ। नंबर 1, नंबर 2, विंग 7 में से जितने भी लोग हैं समझ ले, विंग 7 का जो ग्राउंड फ्लोर का जो फायर एग्जिट डोर है, उसके पीछे से वो लोखंड की पट्टियां उखाड़ कर परसों तक विंग 7 और 8 और 9 के बीच में, इनको बोलो सीसीटीवी दिखाइए, वो बेच रहे हैं अपना खुद का प्रॉपर्टी निकाल कर हाउसकीपिंग वाले बेच रहे हैं, जो लेडी है सुपरवाइजर है वो। एंड ये सब चीजें आपको लगता है किसी के भी ध्यान के बगैर हो सकती है? सीसीटीवी इतने लगा के रखे हैं हमने। सो इट्स नॉट ओनली फायर गाइस, इट्स द ग्रोस मिसमैनेजमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट इन एवरी एस्पेक्ट। अच्छा एक मिनट, विंग 8 के ग्रुप में जब मीटिंग हुआ तब हमारे मैडम सेक्रेटरी ने बोला किसी को, रोशन जी को, आपके घर में आग लगी थी क्या? इतने क्यों चिल्ला रहे हैं? रोशन जी बताइए। हमारे पास एजीएम का रिकॉर्डिंग है। इन्होंने इतना मिसबिहेव किया, मैडम को मैंने जस्ट पूछा कि किसी के घर पे आग लगती है तो अपने को कर्टसी रखनी चाहिए। तुम्हारे घर में आग लगी है क्या? तुम्हारे आप थे सब थे एजीएम में थे, करेक्ट? क्या बोला था कि तुम्हारे घर में आग लगी है क्या? This is the way the secretary talks. This is the way secretary talks. ये हमारी लाइफ ये इनके हाथ में देंगे, ये एरोगेंट लोगों के हाथ में हम हमारी लाइफ देंगे, ये इनके हाथ में हमारी लाइफ होनी चाहिए क्या? Roshan, after the fire incident, basic etiquette say at least call a meeting, check where the people were. We have spent 6 sleepless nights. Nobody has come and asked us what has happened. It is after 14 days, after relentless follow-up from Chintan, that Dipinder came to the floor and then he did some action. But before that, we after 45 days, we are still living in scare. Why? And after paying so much money, after that also, guys, one more thing about the fire audit report received. The fire audit report received by the CFO says that अगर 15 दिन में आपने एक ABC काम नहीं किया, जो वायलेशन है, जिसमें लिखा हुआ है पंप्स चालू नहीं थे। It is very clear. आप सबने पढ़ा वो पढ़ा होगा, पंप चालू नहीं थे। मैंने जब मुझे कमेटी में उन्होंने दया भाव से रखा था, तो मेरा एक स्टेटमेंट था कि फायर के ऊपर अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो इट इज अ नॉन वेलेबल ऑफेंस, तो प्लीज हम उसमें कोई भी तरीके का क्या बोलते हैं सब स्टैंडर्ड वर्क नहीं करेंगे। लेकिन फायर के टाइम भी, फायर के रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है दैट द पंप्स वर नॉट वर्किंग
मैन्युअल मोड पे करने के लिए भी अपने को नहीं आ रहा था, ऑटोमेटिक तो नहीं हुआ, लेकिन मैन्युअल मोड पे करने के लिए भी इनको लोडा का हेल्प लगा जो 22 मिनट बाद आए थे। जो 22 मिनट, तब तक 22 मिनट में वो फायर अगर कैप्चर कर लेते, ना आपके फायर अलार्म चले, ना आपके स्मोक डिटेक्टर चले, ना आपका होस पाइप चला जो उधर है जहां से पानी आता है, ना वो चला। प्रीवियस कमेटी ने चालू नहीं किया था ना, वो भी प्रीवियस कमेटी ने चालू नहीं किया था इसके लिए। So what I'm saying is gross negligence. One more point. See, this is not about being it. This is not about being it. Why we are raising your voice is because जो आज हमारे बिल्डिंग में हो है, कल वो कहीं भी हो सकती है. This is more a safety concern. And when we were trying to connect with people and come together, one of our respected elderly committee member calls up one of our friends and literally धमकी दिया उनको. ये क्या तरीका है? या तो आप काम करो, मेल डाला हुआ है, ये तरीका नहीं होता ना. Are you taking the ownership of that mailer? What nonsense! Can't we agree? You all are Just one single small point. You are all aware about the 3 SGMs conducted for escalation of the maintenance? Yeah. Every meeting the calculation was haywire. At the end of the 2-hour discussion, we come to know we are in profit. There was a printing mistake. The chairman told me there was a printing mistake. So we wasted around 50,000. I don't know how much. Is this the competency of the committee? Committee maintained by one of my friend. He told me that 23,000 total, including external, internal, everything, they are paying in quarter, and we are paying 30,000. Even lesser carpet area. So it's a more than Lodha, and we are not respecting loss of life. Exactly. So, मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ, मेरा 11 महीने का बेबी है। तो जब इंसिडेंट हुआ था तो माय मॉम वाज अलोन विद द बेबी एंड आई वाज इन द ऑफिस एंड उनको कुछ पता नहीं था कि आग लगी है, कुछ ना अलार्म बजाना, स्प्रिंकलर्स में कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड एंड ओनली थिंग इज आई एम ग्रेटफुल फॉर माय कुक। वो नीचे खड़ी थी, उसने फोन करके बोला आप लोग अंदर क्यों है, आग लगी है, आप लोग बाहर आओ। एंड आर फुल ऑल द फ्लैट्स ऑन द फ्लोर, नो वन न्यू। मम्मी ने सबको बताया एंड सब गए हैं। फिर मम्मी मेरे बच्चे को लेके 17 फ्लोर नीचे चढ़ आई है। 2 दिन तक उनके पैर शिवर कर रहे थे। कोई आया क्या? कुछ हुआ है so this is time to reflect, it's not a game करना। Just now, very interesting posting in our W10 emergency when we are discussing serious about today's cricket match. That is more serious for them. I don't know. Sir, one more point. I want to raise one more point related to that lady. That lady is one of my family friend. And उनकी बच्ची मेरे बच्चे के स्कूल में पढ़ती है। उनका नाम दीपिका है। मैं रात भर उनके साथ रहा हूँ जब वो लोग गए हैं। और वो दीपिका अभी भी मेरी बेटी को बोलती है मेरी मम्मी का कोई फॉल्ट नहीं है, मेरी मम्मी का कोई फॉल्ट नहीं है। You need to understand those emotions because मेरे बच्चे भी यहाँ रहते हैं। So यदि आप लोग लॉस ऑफ लाइफ को नहीं कंसीडर करते हैं, पॉलिटिकली एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं और कमिटी सही से नहीं चलता है, इसके जिम्मेदार हम सब हैं और हमें ये जिम्मेदारी लेना चाहिए, सबके बच्चे लेना चाहिए। Go and talk to that kid. Two kids are there. They are studying in my kid's class and she is saying like this. Always she is like she has a sleepless night. Who is going to take responsibility? एक माँ ने अपने बच्चे खोए हैं, एक बेटी गई है, जाके बात करके देखो उस बच्ची से यही लगेगा वो एक भाई गई है, एक मदर गई है। किसी को इनको शर्म आती है? मैंने व्हाट्सएप में पूछा भी था हमारे विंग एट में, मैंने ऐसे कर्टसी पूछा, कि कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ रूचर्स करने हैं। उसने क्या-क्या काउंट करवाया उस बच्ची ने क्या-क्या काउंट करवाया? ये वाला ह्यूमन बीइंग, करेक्ट? हम लोगों को एक ह्यूमन कर्टसी होती है कि कोई डेथ हुआ, आप उसको गेज करते हो, वो टेनेंट है, वो ओनर है, दे आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट
किया, हमारे चेयरमैन, ना ही सेक्रेटरी, ना ही उनके कमेटी मेंबर को एक कर्टसी है कि उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमको नहीं पता है। ट्रस्ट मी, मैं, मेरी वाइफ, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो मेरे छोटे लड़के का, he was crying, वो आर्यन was crying and he lost, बोलता है कि मेरे फ्रेंड की मदर पास्ट अवे, हम लोग उसको छुपा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, she is hospitalized, क्योंकि वो ट्रोमा में था, he was not ready to come to home, and believe me, हाँ हाँ वो तो है। और जब हमने लिखा तो बोलता है आई एम एंजॉयिंग दिस बात। इज दिस द रिस्पॉन्स? इज दिस द रिस्पॉन्स? आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर वो इंसिडेंट हमारे किसी के साथ होता तो ये ऐसे ही ट्रीट करते। ये ट्रीटमेंट है ह्यूमैनिटी। प्रीवियस कमिटी ने किया खाली वो एक ही आंसर है। एक छोटा सा पॉइंट जो अभी हम सब लोगों ने ऑब्जर्व किया है एंड विच इज अ रियल पेन पॉइंट, जब अभी डिस्कशन चला कि केवल जी आप इधर आके बैठिए, तो केवल जी ने बोला मुझे तो कमिटी से निकाल दिया गया है एंड व्हाटएवर, एंड इट वाज बीइंग स्टेटेड कि आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर क्यों निकाला। द रिस्पांस व्हिच केम आउट इज की मेरी मर्जी, दैट इज नॉट एंड ऑन द सेम पॉइंट हम लोगों ने एक एचजीएम रखा था, वो तो हम लोगों ने वोटिंग करवा के, व्हाट्सएप पे वोटिंग करवा के, पुश करवा के एचजीएम की मीटिंग रखवाई इनसे। ओके, वो तो एचजीएम कंसीडर नहीं करते, वो सिर्फ एक मीटिंग कंसीडर करते। बिलीव मी, उस टाइम पे भी हम लोगों ने क्लियरली पूछा था, मैंने स्पेसिफिकली खड़े रह के पूछा था, केवल आप कमिटी में हो क्या? उन्होंने क्लियर कट बोला था मैं इस कमेटी में नहीं हूं, और इन्होंने भी तभी बोला था, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग में भी धमकी, अरे तू ये देख लूंगा, ये धमकी विमकी नहीं, छाती पे ऐसा क्या कुछ तो बोला था, राइट? बोलता है मैं छाती पे बात करता हूँ, मैं, दिस इज द वे यू टॉक टू द पीपल, वी आर नॉट ह्यूमन, दिस इज अ डिक्टेटरशिप, आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज अ डिक्टेटरशिप। जेंटलमैन, लेडीज, आपने एक अभी एक नया ट्रेंड देखा होगा, जब भी कोई सोसाइटी का नोटिस या कोई सर्कुलर आता है ना, एक नया वर्ड इन्होंने ऐड किया है, बाय ऑर्डर। व्हाट ऑर्डर? बाय ऑर्डर। आई मीन क्या वो राजा प्रजा वाली बात है? दिस इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, राइट? दे आर हियर टू सर्व, और वो ऑनररी सर्विंग है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। ये सर क्या हो गया? सर हुआ ना सर, एक हमारा इंटरेस्ट तो है, हमारा इंटरेस्ट है इसको निकालने में। अच्छा, और इनका हमेशा का है कि केवल अपने एजेंडा के लिए करता है। आई डिक्लेयर गाइस, जब कभी भी नया कमिटी आएगा, आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। इफ इट आउट, बिकॉज़ इनको लग रहा है ना, तो मैडम हमने जो 2.5 करोड़ का एफडी किया था, इन्होंने 1 रुपए का किया, तो कुछ तो लीजिएगा। ये आएगा 1 रुपए का One second, whilst we are discussing all these things, one question still remains unanswered. वो जो आग लगी थी, unfortunately, क्यों लगी थी किसी को पता है अभी भी? And we are not morally bound to even ask them ये आग क्यों लगी? Why? जवाब नहीं मिलेगा, बोलेगा मेल करो। If we ask the kind of responses that we have got, you know, we've created some posters just to tell you what has happened. There are a series of WhatsApp messages. This is how I speak. This is how I am. उठाओ सब लोग, देखने दो इनको। और अगर आपने व्हाट्सएप किया इन लोगों को, तो पहले बोलेंगे हम व्हाट्सएप पे एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको मेल डालना है। उनका खुद का चलता और है। जब मेल पे लोग क्वेश्चन पूछने लगे और सबको कॉपी रखने लगे, तो नया आइडिया निकाला, बाय गेट में डालो, क्योंकि उसमें एक्सपोज नहीं होगा। हम अगर उन्होंने डिग्री किया है तो हमने मास्टर डिग्री की है, हमने तो फिर वो अटैचमेंट नहीं डाला, माइग्रेट से कॉपी करके डाल दिया। 8 दिन पहले एजीएम के ग्रुप डिसमेंटल होता है। वेरी गुड। One more point. Insurance. Regarding the insurance, as of yet we have no clarity as to What is the insurance policy that we have? सबसे main What चीज़ है। claim
submitted, what claims have been approved. I am really surprised that this machinery functions only on verbal communication. Whenever we have asked, verbally आ गए, क्यों? सब चीज verbal. Why? अच्छा, on the lighter side. On the lighter side, Dipender, sit down. On the lighter side, whenever Dipender writes a mail, I really find it appalling, amusing. I don't have the adjective there. Honorable Chairman. Honorable. Again, the word is wrong. But when the erstwhile chairman is being addressed, he is being addressed as? No honorary होता बाबा. Honorary is reserved. 7 बार इनके पास है उसका. क्यों? Why? See, what we need to understand is this is a learning for us also. We have been sleeping for all this time. That is why this audacity has come out. अगर हम जागरूक होते तो इनमें की हिम्मत आती नहीं आती. So this is a lesson for us. We need to be aware about these things. Exactly. Now आपने बहुत सारा बोल दिया. कमिटी रिजॉल्व कर दिया. हेलो इनको हर हेल्प किया है. जो अपना एसडीएम हुआ था तो पल्लवी जी ने उनको बोला था कि ये कैलकुलेशन में गलत है, तो इन्होंने क्या लिखा है, पॉलिटिक्स चेंज हुआ. दूसरे बात बोला कि कल्चर कमेटी में हम लोग ने जो सत्यनारायण पूजा की वो भी इनको छुपा. दूसरे दिन हम लोग को डिसॉल्व कर दिया और बोला उसके बाद मैंने उनको बोला कि विद रेसिडेंस करना चाहिए. शिवाजी बोला इधर है, हम लोगों ने कभी विदाउट रेसिडेंस नहीं बोलती कि रेसिडेंस की जरूरत नहीं, जो करेगा वो कमेटी करेगा. तीसरा बात, बिनू जी को बोला कि तू महाराष्ट्र नहीं है, तू क्यों बात कर रहा है. एक कमेटी मेंबर राजन जी को बोला है, उन्होंने कमेटी छोड़ दिया, धमकी दिया कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन सा गुंडा हूँ. ये सारे ऐसी चीजें होती है और फिर बोलते हैं कि हमको सपोर्ट क्यों नहीं करता पीएमसी गुंडा. सुनिए, दूसरी बात ये है कि सुनो वेट एक मिनट. आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया क्या लास्ट 6 महीने में, हेलो एक मिनट लास्ट 6 महीने का जो मेंटेनेंस बिल आया है, हेलो listen everybody. Last 6 months, हॅलो, मी डेव्हलप मराठीतून बोलतोय. मी 2203चं माझं फ्लॅट होतं, पण मला अजून एकही मदत झालेली नाहीये. काही पण मला सांगितलं सामान ठेवा, पण सामान पण तसंच आहे, फक्त गोणी आणून ठेवलं. आता लिफ्टचा वापर करायचा नाही, ते कोण वाटून गाणी आणणार. काहीतरी मदत तर करायलाच हवी. आणि मी असं कधी बोलणारा नाहीये कोणाच्या भांडण वगैरे, मला एकदम पण काही उपयोग नाही झाला. Just imagine such a humble guy. कितने humble है.
इनके साथ ऐसे ट्रीटमेंट होना चाहिए क्या? इनके साथ होना चाहिए, किसी के साथ होना चाहिए यहाँ पे? See, now that we have exposed the wrongdoings of earlier committee, मतलब बहुत हमने जितना भी दिखाना है दिखा दिया, डिसॉल्व कर दिया है। अभी इंश्योरेंस क्लेम पास हुआ कि नहीं हुआ वो भी अभी इन लोगों को नहीं मालूम है ना, उनको भी नहीं पता है। अभी कमिटी डिसॉल्व करके उनसे हैंड ओवर लीजिए और जो भी सवाल है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट। उन्होंने बोलने लगा अभी मैं बात करूं कि नहीं? आप भी वही ऑटोक्रेटिक बिहेवियर रखेंगे? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नाउ दैट मोस्ट ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर अगेंस्ट दैट, देयर रॉन्गडूइंग्स हैव बीन एक्सपोज्ड, वी नीड नॉट सीक एनी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम देम। डिसॉल्व करो, कि सेक्रेटरी चेयरमैन नया है, अगर बहुत ही प्रॉब्लम है, अगर किसी कमिटी मेंबर को प्रॉब्लम है, इलेक्शंस रखो, आगे बढ़ो, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, इनाम ऑफिस अभी he is absolutely right, thank you sir। लेकिन आपने इनका जवाब नहीं सुना। उन्होंने कहा आप कौन होते हो हटाने वाले, डीडीआर हटाएगा। दिस इज द स्टैंड दे आर टेकिंग राइट नाउ। सो वी हैव काउंटेड, देयर आर 185 पीपल इन दिस हॉल राइट नाउ। वी हैव द सर्कुलेशन ऑफ द फॉर्म गोइंग ऑन। आज हम ऑफिशियली मेजोरिटी में इनको डिसॉल्व कर रहे हैं और यू आर राइट सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुजीत जी को, सुजीत जी, हाँ, आप जो इंटरिम, हाँ, एक हमारा रेजोल्यूशन ये है कि हम एक इंटरिम कमिटी फॉर्म करते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा जब तक इलेक्शंस फिर से नहीं होते हैं। और हमारे जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उनको भी अगर इलेक्शन में आना है वो आ सकते हैं। हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, ऑटोक्रेटिक नहीं हैं, ठीक है। हम इनको डिसॉल्व करते हैं एग्जिस्टिंग कमिटी को और नया कमिटी रिजॉल्व का मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप नाम एक बार सबके बता दीजिए, अपने लेटर में भी है। नीरज जी, लेटर है ना आपके पास? अगर आपको नाम पढ़ लेंगे प्लीज, तो हम उनको, अगर आप सबकी सपोर्ट होगा तो ही हम कर पाएंगे। नहीं, हम सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। और अगर किसी को ये कमिटी में, इंटरिम कमिटी में आना है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। वी आर मोर देन वेलकम टू हैव यू ऑल सो दैट वी कैन रन दिस। अगर इन्होंने जैसी गलतियां की वैसी हम ना करें। सो जो नया कमिटी है जो हम आज डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो प्लीज हाथ उठाइए। और मैं जब पूछूं कि अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो प्लीज हाथ उठाइए, प्लीज। मिस्टर सुमित फ्रॉम विंग 8 2403, एनीबॉडी सपोर्ट्स हिम? थैंक यू। मिस शिखा फ्रॉम विंग 11, शिखा जी, यस, थैंक यू। पल्लवी जी, हाँ वो खड़े हो जाए प्लीज, मैं इसका नाम ले रहा हूँ, प्लीज खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए प्लीज। पल्लवी जी फ्रॉम विंग 11, Pallavi ji, she has been a consistent support to all of us since last 3 committees she is working. Pallavi ji, आप आगे आ जाइए प्लीज। Mr. Aditya from Wing 11, आदित्य जी भी एक और support है। Mr. Vinu, who was the Austral secretary, Vinu जी आप आ जाइए, इंटरिम कमिटी है, Vinu जी। थैंक यू। मिस्टर राजन मेहरा जिनको जान से मारने की धमकी दी गई थी, राजन जी प्लीज आगे आ जाइए, राजन जी प्लीज आगे आ जाइए। मिस्टर सुजीत ओझा फ्रॉम विंग 9, सॉरी विंग 10, सुजीत जी प्लीज रेज योर हैंड। मिस्टर भूषण फ्रॉम विंग 10, भूषण जी प्लीज आइए सर, प्लीज आगे आइए सर, प्लीज आगे आइए। हम लोगों ने कोशिश की है कि सभी विंग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, वो हम लोग बाद में एक बार फिर विंग के नाम भी बोल लेंगे। मिस्टर शशांक फ्रॉम विंग 10, मिस्टर शशांक फ्रॉम विंग 10, शशांक जी आइए, प्लीज आइए गाइस, प्लीज वेरी मच। और अब एक और रिस्पेक्टेड लेडी का नाम है जिनको पिछली बार मीटिंग में भी नहीं बिठाया गया था, पायल जी हैं, हाँ ठीक है, पायल जी विंग 7 से हैं। मिस्टर पवन हु हैज बीन अवर फाइनेंशियल गाइड, वो हमारे चाणक्य हैं। पवन जी आगे आइए प्लीज, पवन जी प्लीज आगे आइए, आगे पवन जी, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने हमको फाइनेंशियली काफी गाइड किया है, इकोनॉमिकली काफी गाइड किया है। मिस्टर नीरज मोंडिया फ्रॉम विंग 8, नीरज जी
सिविल इंजीनियर है और वो आई थिंक हमें टेक्निकली काफी अच्छा गाइड कर पाएंगे। इधर भी जितने भी वायलेशंस हुए हैं फायर एक्ट में और फायर की जो सिस्टम्स को चलाने में, वो गाइड हमें उन्होंने ही किया है। सो आई बिलीव ही विल कंटिन्यू हेल्पिंग अस। और मैं एक और नाम लेने जा रहा हूँ जो फायर के जो इंसिडेंट अपना जो हुआ था, उनके वो एक्सपर्ट हैं। ही इज अ प्रोक्योरमेंट एंड फायर एक्सपर्ट विद अ ग्रेट मल्टीनेशनल कंपनी, एंड उनके पास शायद 10 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का एरिया है टू फोकस ऑन फायर सेफ्टी एंड प्रोक्योरमेंट। हिज नेम इज मिस्टर रोशन फ्रॉम विंग 8। एक मिस्टर स्वप्निल कांबली जो शायद आज नहीं आ पाए हैं, पर स्वप्निल कांबली फ्रॉम विंग 10 एंड ही विल फिल अप द मतलब हमारा जो नया कमिटी है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी वगैरह जो कोटा रहता है, तो उसमें भी वो फिलअप कर रहे हैं। जो उन्होंने हमें हाँ कहा है, however he could not come here, Mr. Swapnil Kambli from Wing 10, Mr. Prashant from Wing 11. Prashant ji, please come forward. Thank you, Prashant. Mr. Aniket from Wing 8. Aniket ji has been a very silent soldier and he has been supporting us. और जितने भी कम्युनिकेशंस में जो निषेध किया है हमारी सोकॉल्ड कमिटी ने, वो सब उन्होंने एक के बाद एक पॉइंट आउट करके बताया है, एंड ही हैज बीन वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच अनिकेत जी। एंड मिस्टर परदेसी रावल फ्रॉम विंग 8। परदेसी, सो दिस इज द न्यू कमिटी गाइस, एंड दिस विल बी ओनली एन इंटरिम कमिटी। हम लोग डीडीआर के पास जाके इलेक्शन जल्दी से कराने की कोशिश करेंगे। मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी को भी इसमें आना है तो आप में से सब छोड़ दीजिए ना, क्यों बात कर रहे हैं? सब छोड़ दीजिए ना, जवाब में क्यों देना है? देखिए अभी भी वो लोग, उनको शेम नहीं है ये इतना सब होने के बावजूद भी। देखो इनको कैसा थोड़ा तो होना चाहिए courtesy। अपन भी वही सोसाइटी में रहते हैं, अपने साथ जो बिहेव हुआ है लोगों ये बिहेव कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी शेम नहीं है। देखो कैसा है, आप लोग क्या कर रहे हैं वो समझना चाहिए, थोड़ा तो समझना चाहिए। We have been requesting one more person who is a domain expert. Right? We have been pushing him a lot. He's not been agreeing. We've all recommended Keval also to be a part of the committee. Yes. I would request if the House would maybe tell him, we've tried convincing him, Keval is not agreeing to it. We want Keval to be part of the committee. Because we need someone who is an expert. In the light of the conflict that is going on, it's better that the earlier committee key persons remain out. So that is in the interest of the society. That is number one. Number two, yeah, keep the politics away. Number two, we should have a timeline by which the election should be conducted. Somebody from Wing 9. I think nobody is from the Wing 9. सीमा जी क्या from Wing 9? Rajan ji also Wing 9. सीमा जी and राजन जी from Wing 9. और किसी को आना है तो आ सकते हैं। Please आइए। Please volunteer yourself. Please, absolutely, please. We will have to be Okay. equally manage all this. अनिल निकम from W7. और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है Please. कम। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग हाईवे और हाईवे नहीं है। We are the people. We will associate with the people. We will take care of the people. If we fail, we will put our paper. Without integrity, no compromise in all these things. So, though you are nominated me on this side, I have a simple question, Kevalji, and to all the respected members who had something in their minds which has come out today, right? तो हमने उनको बोलने का चांस नहीं दिया है. I don't know whether we'll allow that or not, but let us not go into personal allegations on anyone. That's my request, right? बहुत सारा लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है. No one comes for personal benefit, right? I assume and I am sure that कि जो गलती हुई है सबसे बड़ी क्राइसिस मैनेजमेंट में हुई है, कम्युनिकेशन में हुई है.
कम्युनिकेशन डे 1 से गलत गया है, आज भी गलत जा रहा है मैडम। आई गेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यही था, जो लोगों का गुस्सा है वो कम्युनिकेशन के ऊपर आता है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी हो रहा है इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, राइट। नया कमेटी आया था तो एक्सपेक्टेड ये था कि आप उसको आगे बढ़ाएंगे। जो भी गलत हो रहा है वो कम्युनिकेशन में हो रहा है। तो माय रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से भी आगे जितना कम्युनिकेशन स्मूथ कर सकते हैं प्लीज कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मुझे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के लिए है, जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है? उसको कोई टेक्निकली बायलॉज के हिसाब से अलाउड या कोई प्रोविजन है जिसके तहत हम ये कर रहे हैं, और इसका आगे लीगल रास्ता क्या है, ये मेरा सवाल है। We have already consulted the DDR. We went there 4 times, and he said that there are several ways to protest and oust the committee. Right? The first way was to go to the court, second to file a complaint to him, and third, and the easiest and the fastest way, because we were going through this fire calamity, is to call an AGM, which was anyways called. And if the majority of the quorum, not the residents, the majority of the present members are voting against the current committee, there is a letter which is being circulated right now, सब साइन करते हैं उसके ऊपर। उसमें हम लोगों ने फिर भी हमने पैरिटी रखी है। हमने ये कहा है कि XYZ नंबर प्रेजेंट थे, उसमें से Y नंबर ने इनको आउस्ट करने के लिए वोट किया है, एंड Z नंबर ने इनके फेवर में वोट किया है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ आप निकाल दो, हम वो जो लेटर जो हर जगह सर्कुलेट हो रहा है यहाँ पर while I am talking, it gives everyone a chance to either vote for them or for the new committee, right? Number 1. So this letter, once we sign, it will be submitted to the DDR office tomorrow itself, and this letter is being addressed to the society. I am not addressing it to the DDR. This is as per the instructions received from the DDR, on table DDR. So this letter will be submitted to the society tomorrow morning once the office opens, and the copy will be submitted to the DDR and to the Pune Cooperative Housing Society office as well, where the IAS officer is sitting, and I have met them personally. So whatever we are doing is 100% as per the bylaws. Number 1. Number 2. Sorry, I have a question. Sir. The thing is that for carrying out this AGM, whatever we have got here, general meeting, this agenda should have been communicated through email to us. This was not communication. Sir, it was communicated. No. This was not communicated to us on mail. So whatever we are doing right now is not legally correct. It is fine, sir. No. You can have your viewpoint. See, I have not viewpoint. The thing is that because when we came here, I am not in the favor of the old committee or the new committee, whatever is there. But the thing is that this thing has to be brought to the notice to every member or every flat owner of this society. It cannot be done on Absolutely right. Sir, AGM का एजेंडा किसने बनाया था? Let me answer. Sir, AGM. एक मिनट. Clarity, legal. The same point, the AGM का agenda committee बनाती है, which is never going to tell us if you can bring the low confidence. The thing is that if you want. So वो agenda में आएगा ही नहीं. The thing is that I have some point. Your point, sir. Allow me to answer. So now a next meeting will be called by the new committee. To all the residents. No, not like this. It will be done. ये लोग नहीं करेंगे. ये तो अभी भी हंस रहे हैं. ये तो अब ये नहीं करेंगे. आप रहने दीजिए सर. DDR. I have spoken to DDR sir. And नहीं सर आप रहने दीजिए. We have spoken to DDR and we are going to submit this. We are going to get his permission. We are going to get his permission to even change the signatures in the bank, where the FDs and accounts are sitting. So it will be done as per the right. It is a majority, yes. So जो नया कमेटी है, मेरा एक रिक्वेस्ट है. So मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पर्सन नहीं होते हैं. अगर नया कमेटी बन रहा है तो there are some pressing points, right? So there has to be some commitment to ourselves by the committee, new committee, कि हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, और किसी ने बोला कि क्या टाइमलाइंस है हर चीज का, वो अगर हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, then it makes sense to what we are doing. This interim committee will be only for 3 months. We will then proceed. एक मिनट. Now अगर ये डिसॉल्व हो गई ना कमेटी, डिसॉल्व हो गई. सर दीपेंद्र जी एक मिनट. ये सबसे पहले एक आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है. उसके बाद आप जो बोलना है बोलिए. मेरे को बात करने दो, मैं आपको आपका बात बाद में सुना जाएगा. पहले 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देना पड़ेगा.
पहला अभी अभी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस जो इसका बारे में आप बताएंगे और जो फायर एक्सीडेंट में सफर हुए हैं उनके लिए आपने क्या क्या किया है वो जरा बताएंगे। इसके बाद आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। पहले ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको देना पड़ेगा। इंश्योरेंस का एग्जैक्टली क्या हुआ है सब मेरे को मालूम होना चाहिए। इंश्योरेंस का 25 लाख का क्लेम पास किया है हमने। हमें 48 लाख बोला गया है, 48 लाख बोला गया है और वो भी मीटिंग में अभी और एक झूठ और 28 गाइस सिर्फ विंगेट का जो एक लिफ्ट गया है 48 लाख का जो भी हुआ था why 28 lakh because there were concerns, there were violations in fire safety. आपका किसी का ना आराम लगा है ना आपका घोष पंप चला है, तो इसलिए ये अभी बोल रहे हैं हमारी मीटिंग में लगा था 28 लाख रुपया। सुनो पहले उनका बात कंप्लीट होने दो। एक मिनट उनका बात पूरा कंप्लीट होने दो तब तक कोई बोलेगा नहीं। प्लीज कीप क्वाइट। उनका बात कंप्लीट होने दो उसके बाद अपन बात करेंगे। पहले उनका बात कंप्लीट होने दो। प्लीज डोंट ऑब्जेक्ट। उनको बोलने दो अभी। प्लीज कीप क्वाइट। भूपेंद्र जी प्लीज from the insurance along with the depreciation amount जो भी होती है उधर से करके 25 लाख का उसमें किया हुआ है अभी। The present total was around 42 lakh plus GST was amount 48 का लेकर आता है जो GST का amount बोलते हैं we don't because IT से उनका लेके करना पड़ेगा तो we are discussing with them. So now the new committee is there, they will let them take forward to them. अभी now I speak this thing, okay? सेकंड पॉइंट जो सर्वाइव जो हुए उनके बारे में बोलो। भाई बेटे के मत बोलिए। आपने भी सुना इसके एलिगेशन किया हुआ जब ये आग लगा तब स्टेटमेंट इधर भटक रहे I tell you, I along with Surendra Mohan and Boite, chairman of Cluster 4, हम लोग टेरेस में हाउस पाइप से लेके पूरा फाइटिंग कर रहे थे उस टाइम में। एक मेंबर ने खुद की माँ को घर पे रखते नीचे आके मेरे को बोल रहा है कि मेरी माँ घर पे है आप कुछ कर सकते हो क्या? प्लीज बोलने दो मैडम दो डालू बोलने दो। This is the whole point. If you allow them to speak, they will come out with more and more stories. लिफ्ट का क्या हुआ वो बताएंगे क्या? अभी लिफ्ट का क्या हुआ है नहीं बताएगा? इट्स ओके, दे एग्रीड। हमको कुछ बताने को नहीं करके देखो ये उनका है। अरे यार एग्जिस्टिंग में अरे आपको अपना ही कुछ सुनने का है दूसरे का नहीं सुनने का तो ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं। आपको जो सुनने का वो आप कर रहे हैं। ये हमारे साथ यही हो रहा है। In the V8 group, our respected secretary has time to take out a video. पिजन्स को ना खिलाए। अगर हम जो कंसर्न रेज करें उसका जवाब देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज हम ये कहते हैं हमको आपका सुनने के लिए टाइम नहीं है। आप लोग ने डिसीजन ले लिया ना कमेटी को डिसॉल्व करने के लिए तो व्हाई आर डिस्कसिंग नाउ? जो भी आपको फॉलो करने के फॉलो तो प्रोसेस हो देते हैं। तो लेट मी टेल यू जो 5 साल में
देखो कितना एरोगेंस है, वापस वही है, वापस वही है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अभी अभी न्यू कमेटी जो है उनके एजेंडा जरा एक बार डिस्कस करेंगे। केवल जी केवल अभी न्यू कमेटी जो इंडियन कमेटी जो स्थापित की है, सुनिए यहाँ पे पर्सनल झगड़ा नहीं कर रहे हैं। meeting now? Resolution will be taken for the agenda meeting. Not for you. I feel the level. अभी हम चेयरमैन और सेक्रेटरी अभी भी है, ठीक है? तो प्लीज मीटिंग इज कैंसिल, मीटिंग इज कैंसिल। आप लोग जा सकते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे, आप जाओ मैडम, ये लिसन लिसन, हम लोग नहीं जाएंगे, आपको जाना जा सकते हैं। हमारे साथ है, आप जाइए। Please. 5 मिनट 2 मिनट शांति से बैठो। Excuse, 2 मिनट शांति से बैठो। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखा अभी भी बोल रही है मैडम, घर का मैटर है क्या? एक क्लस्टर 2 का मैटर है, नहीं घर का मैटर है, एक क्लस्टर 2 का मैटर है, एवरी घर का मैटर नहीं है। ये अपना क्लस्टर टू, ये पीपल का मैटर है, ये लोगों का मैटर है, ये आपका पर्सनल इलेक्शन नहीं है, यहाँ पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, ये रेसिडेंट का इशू है, ये पार्लियामेंट के पावर नहीं दिखा रहे हैं। See, as per law ना, as per law ना, you can't make a vacuum. आप vacuum create नहीं कर सकते हो. It is as per law. आप DDR में भी जाओगे, तो vacuum create नहीं होगा कभी भी सोसाइटी में. So what is the remedial procedure out? AGM साल में एक ही बार होता है. आप ना सब एक SGM बुलाओ और SGM पे एक resolution पास करो. 2/3 majority हो गया. There is you as a member are having powers that you can form a new committee. There is no, ऐसा कोई नहीं है कि मैंने जो सोसाइटी में इलेक्शन हो गया उसके बाद में there is a power 2/3 members आप लेके SGM क्रिएट करो और SGM जैसे ही हो जाएगा आप आज ही SGM डिक्लेयर कर दो, आज ही डेट डिक्लेयर कर दो। सर हम वही कर रहे हैं और ये साइन होने दो, डिक्लेयर कर दो। अब हम वही कर रहे हैं, ये साइन हो जाने दो। SGM क्रिएट We will convert this into SGM. कोई इशू नहीं है। 2/3 We will convert this into SGM. That is the agenda. Let the signs get over, please. सर ये लोग कुछ नहीं देने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सर। सबसे पहले तो DDR का स्टैंप जब मिलेगा, जब क्योंकि मैंने लेटर, हम लोगों ने जो लेटर लिखा है, सब लोगों ने जो आप सब साइन कर रहे हो, वो हमने सोसाइटी को लिखा है, राइट? एंड सोसाइटी में अगर मेजोरिटी ऑफ द रेसिडेंट्स आर इन द फेवर ऑफ नॉट हैविंग दिस पर्टिकुलर कमिटी अहेड, so then they will have to voluntarily resign, or they will have to hand over. They won't resign because of vested interest. That is a separate thing. So वो नहीं करेंगे, ठीक है? So नहीं, अभी भी उनको वो नहीं है कि भाई इतना हमारे सामने विरोध है, तो चलो ये ऑनरेबल पोस्ट है, आप कर लो भाई, लेकिन नहीं, उनको नहीं करना है वो, कोई बात नहीं। उसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। मेरा पॉइंट ये है that today we are only collecting the majority of the resident signature which are against the current committee. Rest everything will fall in place. Point number 1. You are right sir, हम लोग SGM बुलाएंगे once the entire process is over, for sure. अभी रही बात एक चीज मुझे अभी बताया था सो आज का एजेंडा हम फिक्स करते हैं। सो द फर्स्ट agenda is majority of the residents were not happy with the management style, and in the wake of the fire incident which has happened, and after that however the things were managed, we are passing a particular resolution. Sir, ये point इसमें डालो, nothing proper answer also. Correct. मतलब मैनेजमेंट में सब कुछ आ गया, फिर भी मैं उसको डिवाइड कर लूंगा. So are we passing that particular resolution right now?
Thank you. So can we then request the management committee? Only 3 people are sitting here right now. जबकि उनके पास तो बहुत सारे लोग हैं. 16-17. Right? Only 3 people. Can we ask them to hear this out and one more time in loud, please? जैसे हम फुटबॉल में चिल्लाते हैं दोस्त. Okay? We are asking them to vacate the seats right now. Not the seats we are sitting on, sir, right now, but the office bearer seat right now. As नहीं सर उसकी जरूरत नहीं, हम इतने बुरे थोड़ी हैं. He has to resign as the chairman and the secretary has to resign along with the gentleman standing over there wing 8 में जो हमेशा साथ में ही खड़े होंगे कि भाई हम आपको कमेटी से निकल जाने की दरखास्त इधर मेजोरिटी से पास कर रहे हैं. Thank you very much, sir. The second agenda, very important agenda, is the balance sheet. As per the CHS bylaws, before the end of September. हाँ, इसको कोई अच्छा सॉरी ये जो पहला रिजोल्यूशन जो था उसको प्रपोज कोई कर रहा है तो प्लीज मुझे हाथ पर करें ताकि हम उनका नाम लिख लें. Proposed by Chirag, seconded by Madam, your good name please. Namita. Thank you very much. Second point is the balance sheet. Balance sheet 30th September के पहले majority से pass होनी चाहिए within the AGM. They have very smartly planned it today so that हमको कैसे भी करके उसको pass करना ही पड़े because of the deadline, right? So we will be writing to all the tax authorities. We have got CAs and other people who are with us right now. We will be writing to all the taxation authorities, including DDR, including banks, that this has not been happening because of this particular resolution. And then we will submit it, and उसके लिए कुछ penalty लगेगी guys, because we will not be submitting in time, and that penalty is taken by the government. So I also request that whatever the penalty amount is will be conveyed to you by the interim committee. But as of now, do we agree to pay the penalty amount and file the balance sheet later on? एक्सटेंशन मिला है सर, लेकिन ये तो हमें हैंड ओवर देंगे नहीं, आप समझ रहे हो ना, तो हो सकता है डिले हो जाए. सर एसडीएम के लिए पहले कमिटी ईडीआर का स्टैंप लग जाने दो, उसके बाद जी. नहीं अविनाश भागवत, डॉक्टर भागवत. वहाँ पे जाके आपको ये देना है 30 days extension दीजिए. So not only DDR sir, there are certain taxation authorities as well, जिसके पास से हमें वो लेना पड़ेगा. So what I am requesting is that whatever is the pathways, do you allow us and do you authorize us to go ahead and seek extension, and if there is a penalty, do we please agree that we will have to pay the penalty for now? Yes. Proposed by somebody please. Vinit Patkar and seconded by Sumit. Thank you. The third very important point जो ये लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं, FCAM. There are number of people who are asking कि FCAM में क्या करना है. अच्छा, इसमें बहुत मजा है. ये है. Let us first understand this entire thing thoroughly. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये पूरा प्रोसेस पता हो, पर प्लीज for the sake of repetition सुन लीजिए. Lodha is the developer. Macrotech, right? They are a public limited company. They set up this entire township or estate as we call it, and then now they are asking for federation maintenance amount. जब आप लोगों ने फ्लैट खरीदा था, उसको कहते हैं AFS, Agreement for Sale, आपने साइन किया था. Agreement for Sale में आपने 2.55 रुपीस पर स्क्वायर फीट से उनको 5 साल का FCAM एडवांस में दे दिया है. अब for the sake of theory, समझ लो आपने 2018 जुलाई में आप आए, लेट्स से, बिकॉज़ 2018 जुलाई में ओसी आई थी. ओसी इज द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट व्हेन द बिल्डिंग इज रेडी फॉर ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब आप वहां पर रह सकते हो. सो समझ लो थोड़ी देर के लिए थियोरेटिकली आप जुलाई 2018 में यहाँ पर रहने के लिए आए. सो 19, 20, 21, 22, 23, 23 में आपका 5 साल पूरा हुआ. जो आपने FCAM दिया था 5 साल का एडवांस, वो 23 में खत्म हो गया. सो ऑब्वियसली इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम लोडा, बिकॉज लोडा इज स्टिल मेंटेनिंग द फेडरेशन. फेडरेशन का मतलब जो ओवरऑल एस्टेट का कॉमन एरिया है. जब तक वो यहाँ काम करते रहेंगे लोडा और उसके लोग, तब तक वो फेडरेशन को मेंटेन करेंगे, राइट? दे हैव दैट लीगल स्टैंडिंग फॉर दैट. सो उन्होंने 2023 में हमें सबसे पहले एक FCAM का बिल भेजा था, जो हमने एक बार AGM में ऑडिटोरियम में डिस्कस भी किया था. तब उन्होंने गलती की थी, उन्होंने आपसे 5 साल का एडवांस मांगा, नंबर 1, और उसके ऊपर GST लगाया, और उसके अंदर पानी का भी उन्होंने अलग से बिल दिया था, उसके ऊपर भी GST लगाया. सो तब हम लोगों ने AGM में ये डिस्कस किया था कि एडवांस अगर आप कुछ पे कर रहे हो इन अकाउंट, मतलब बहुत सारे अकाउंटेंट्स होंगे आई बिलीव, तो एडवांस के ऊपर कोई GST नहीं होता है. आप जो सर्विसेज ले रहे हो, अगर मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ और फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर GST लगता है. बट एडवांस जब आप मुझे दे रहे हो तो उसके ऊपर कोई GST होता नहीं. सो वी देन सेड दैट कोई इसको भरेगा नहीं.
राइट? तो हम लोगों में से मेजोरिटी ने उसको भरा नहीं था। उसके बाद उन्होंने हमसे बात की, पवन जी और मैं तब कमेटी में थे, तो हम लोग लोढ़ा के पास जाके भी आए। हमने ये कहा कि भाई आपने बोला कि खत्म हो गया, 5 साल का पैसा हमने आपको दिया था, आप बोल रहे हो खत्म हो गया, नया भरो, वी एग्री टू दैट। पर जो खत्म हो गया है उसका ऑडिटेड स्टेटमेंट तो चाहिए ना हमें कि भाई वो पैसा कहाँ खर्चा हुआ, करेक्ट? सो लोढ़ा सेड वी विल नॉट गिव इट। आज तक भी उन्होंने दिया नहीं है। उन्होंने एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट फाइनली दिया है, लेकिन वो ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्टिफाइड स्टेटमेंट एंड ऑडिटेड स्टेटमेंट। सो ऑडिटेड स्टेटमेट उन्होंने मुझे और पवन जी को दिखाया था। पवन जी, अगर मैं कहीं भी गलत जा रहा हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। हम लोगों ने कुछ डेविएशंस देखे उसमें। 6 घंटा शायद वो मीटिंग चला था, 5 से 6 घंटा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे डस्टबिन होता है ना जो ग्रीन कलर का, जो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ रोज यूज करता है, राइट? वो 6,000 से 8,000 रुपए का डस्टबिन आता है, एक डस्टबिन, जो हमने भी प्रोक्योर किया था पहले और मुझे वो कॉस्ट पता था। वही डस्टबिन इन लोडास बैलेंस शीट इट इज 27,000। आप समझ रहे हो? ऑडिटेड स्टेटमेंट आपको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उसमें गड़बड़ है, नंबर 1। ऐसे बहुत सारे चीजें थी पवन जी, करेक्ट? और उसके अलावा और एक चीज हमने नोटिस की, दैट दे आर चार्जिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर चार्जिंग 27% एज मैनेजमेंट फीस। मतलब ये सब जो कुछ भी खर्चा हो रहा है, समझ लो 100 रुपए का खर्चा हुआ ये स्टेट को चलाने के लिए, तो उसके ऊपर 27 रुपया वो लोडा खुद लेके जा रहे हैं मैनेजमेंट फीस। उनके जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो लोडा में काम करते हैं, जो पार्किंग ऑफिस में बैठते हैं, वो सबका खर्चा आप और मेरे पैसे से जा रहा है, राइट? तो उन्होंने तो उसके ऊपर 27% क्यों, उसके ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, राइट? उसके बाद बहुत सारे क्लस्टर्स ने, सोसाइटीज ने, दीपेंद्र जी भी उसमें थे, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया, एंड आई अपलोड हिम फॉर दैट। तो उसके बाद लोडा जब दबाव में आया, तब लोडा ने कहा कि एक काम करो, हम सर्टिफाइड स्टेटमेंट दे रहे हैं, राइट? लेकिन सर्टिफाइड स्टेटमेंट इज स्टिल नॉट ऑडिटेड स्टेटमेंट। वो उन्होंने जो दिया वो सर्टिफाई किया है इन कॉमन मैन्स लैंग्वेज, वो सर्टिफाई किया है स्टेटमेंट। ऑडिटेड ऑडिट में वो पूछता है आपको, इसका बिल दिखाओ, ये कहां से आया, वगैरह वगैरह वगैरह। सो वो नहीं हुआ है। सो वी शुड नॉट पे, नंबर 1। और अभी भी बोल रहा हूँ, जिनके पास रेंटेड फ्लैट्स हैं, अगर किसी ने रेंट पे दिया हुआ है तो उसको प्रेशर आएगा और आ भी रहा होगा कि भाई जब तक आप देंगे नहीं तब तक हम टेनेंट को अंदर नहीं आने देंगे, वगैरह वगैरह। इन दोस केसेस यू विल हैव टू टेक एन इंडिविजुअल कॉल, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल, मतलब मैंने एक छोटा सा मैथ किया है कि अगर आप रेंट पे दे रहे हो, आपको 30,000 रुपए का रेंट मिल रहा है, राइट? तो वो बीट नहीं करेगा अगर आप एफटीएम भर देते हो, वो बीट नहीं करेगा अगर आप एफटीएम भर देते हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो अपना मैथ करिए। अगर आपका 30,000 से ऊपर का रेंट है और अगर आपका मैथ बैठ रहा है, ओनली देन यू पे एफटीएम, अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, उसके बाद लोडा ने और एक गुगली फेंका कि भाई हमने सोसाइटी को ऑडिटेड स्टेटमेंट दे दिया है, राइट? आप सबको ईमेल आया होगा, जबकि उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने किसी को नहीं दिया है, एंड वो हमें मानना चाहिए। और पिछले एजीएम में हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था दैट वी शुड गो लीगल विद अदर क्लस्टर्स और सोसाइटीज ऑन दिस। वो हमने, मतलब वो कहते हैं ना, वो सॉरी मैं वापस जा रहा हूँ, पीएमसी वाली बात हो गई। तो पीएमसी के उसमें एक हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई आप लीगल जाओ। उसके बाद हम चले गए और नई कमेटी आ गई, तो अभी भी हमारा वो स्टेटस को है। सो बाकी सोसाइटीज ने, जैसे क्लस्टर 1 ने किया है, उन्होंने रीड फाइल किया है, हमें भी करना चाहिए और ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अच्छा, ये सब हो गई टेक्निकल बातें। मैं आपको एज अ लेमेंस लैंग्वेज अगर बताऊं तो आज नहीं तो कल, या तो 3 साल बाद या 4 साल बाद लोडा विल हैव टू क्विट दिस प्लेस। जब उनका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, जब वो सब फ्लैट बेच देंगे, तब वो इधर से निकल जाएंगे, राइट? सो जो लोग रुक सकते हैं, आपको ईमेल पे धमकियां आएंगी, फोन पे धमकियां आएंगी, आपका इंटरेस्ट इतना हो गया, मेरा इंटरेस्ट कुछ मतलब सब मिला के 2 लाख रुपए कुछ तो मांग रहा है मुझसे, वो मैंने नहीं भरा। आज नहीं तो कल वो जाएंगे। इफ यू कैन वेट अंटिल देन, जैसे हर एक को आएगा, अरे बेटे तुमने भरा नहीं है, तुमको फुटबॉल लेकर ले दूंगा, सो दैट इज ऑल रॉन्ग। जैसे आज यहाँ पर हमने दिखाया कि भाई अगर साथ में आते हैं तो क्या पावर आता है, वही वहां पर जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ माय पर्सनल रिकमेंडेशन, इट इज नॉट अबाउट द कमिटी और दिस थिंग, बट माय पर्सनल रिकमेंडेशन, एज आई नो दिस पर्टिकुलर सेक्टर एज सच, दैट आप मत भरिए, आप उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल दीजिए। अगर आपको चाहिए तो मेरे पास एक ईमेल है जो मैं लोडा को हमेशा करता हूँ और उनका कोई जवाब वापस नहीं आया है आज तक ऑन रिकॉर्ड। वो ईमेल का मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। मेरे पास सबके नंबर नहीं रहेंगे, लेकिन मैं अपने जो जानकार लोग हैं उनको दे सकता हूँ। आप लोग प्लीज अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, प्लीज शेयर दैट। अपने ग्रुप में डाल दीजिए या सर मैं एक ही ग्रुप में हूँ तो अभी टाइम लगेगा, मुझे बाकी ग्रुप से निकाल देगा। सो मैं अभी जितने लोगों को मैं जानता हूं उनको मैं शेयर कर दूंगा। प्लीज वो जैसे ही अगर आपको लोडा का ईमेल आता है, प्लीज शेयर दैट पर्टिकुलर ईमेल वर्ड बाय वर्ड, सिवाय आपका नाम और मेरा नाम चेंज करना भूलना मत और फ्लैट नंबर।
तो अगर आप इतना कर देंगे तो अभी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हावेवर आई रेकमेंड जो भी नई कमेटी आ रही है, बीनू प्लीज, जो भी कमेटी आ रही है उसको जल्दी से जल्दी इसके लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करना चाहिए एंड दैट इज द ओनली वे आउट। थैंक यू। एनी अदर पॉइंट? since we are in the subject, can you just say something about BKM also? आप BKM का भी जरा बोलिए ना। BKM का भी पूछ लो ना। तो पता है उनको। हाँ, हेलो, हमारे साथ पीटी जान और यूनियन पर के बोला। अब मेरा कहना है कि जो आप अभी इसके बात करते हैं FKM के बारे में, तो अभी तक किसने भरा नहीं, ठीक है, लेकिन उसका प्रोविजन करना जरूरत है, क्योंकि जब ये 2-4 साल और जाएगा, 5 साल जाएगा, इसका 5 लाख होगा, 6 लाख होगा, then it is very difficult to get that amount from that flat owner. हाँ, then this had happened in Splendor. Splendor में हो गया, अभी रिसेंटली हो गया या 15 दिन में हो गया। Recently, the developer left and without any blank. People of the society, there are 4 to 5 societies, more than 36 buildings. 6 buildings are got one society. But they have got an ego. That ego is because you have got only flexible. Others of the society members, they are mighty. But after some years, this may happen that we will not be united. And that has happened in that case. People there, STP. No, sir, you are absolutely right. For example, STP plant, they have got 2 STP plants. They are fighting for their, because we are paying the maintenance and day-to-day maintenance. So why should we go with others? We are keeping it absolutely proper. Now, who the society, who is going to maintain it after this developer, not developer. So that is the job. Sir, मैं आपका जवाब देता हूँ। सर, you have hit the right spot. सर ने एक चीज़ कही जो मैं भूल गया था एंड थैंक यू वेरी मच, आपने याद दिलाया। आपको जो FKM भरना है, देखो आपके एग्रीमेंट फॉर सेल में आपने साइन किया हुआ है कि मैं ABC अमाउंट ऑफ FKM भरूंगा। सो इफ somebody is in a mind frame कि मुझे कुछ भरना ही नहीं है, तो then they are wrong. हमें FKM तो भरना ही है। हमें 2 तरीके के मेंटेनेंस भरने हैं since we are living in a township. One is a federation maintenance amount, which is FKM as such, and second is BKM. बराबर? तो FKM की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो FKM में आपके 2.55 रुपीस पर स्क्वायर फीट से आपने एग्रीमेंट फॉर सेल साइन किया हुआ है। 2.55 रुपीस पर स्क्वायर फीट, ये याद रखिएगा फिगर। इसको आपके एग्रीमेंट फॉर सेल में जो कारपेट एरिया लिखा है, अभी कुछ लोगों ने रेरा के पहले एग्रीमेंट साइन किए, मतलब 2017 मार्च से पहले, उनके एरियाज अलग रहेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज सुन लीजिएगा। और कुछ लोगों ने 2017 मार्च के बाद एग्रीमेंट फॉर सेल साइन किए होंगे, जैसे मैंने रेरा के आने के बाद साइन किया। सो दोनों के कारपेट एरियाज अलग अलग होंगे, दोनों के कारपेट एरियाज अलग अलग होंगे। और आपके एग्रीमेंट फॉर सेल में जो कारपेट एरिया लिखा है वो आपके लिए फाइनल कारपेट एरिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करता हूँ, प्लीज मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करता हूँ। समझ लो मैडम का 2 BHK है और मेरा भी 2 BHK है। अब सेम टिकट साइज है, लेकिन उनका एग्रीमेंट फॉर सेल अलग होगा अगर उन्होंने रेरा के पहले साइन किया होगा और मेरा अलग होगा। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन होता है कि भाई मैं कौन सा लूँ। So whatever is written in your agreement for sale, there are various writ petitions going on in High Court and Supreme Court where MOFA and whatever was pertaining before RERA has to be quashed. However, उसके ऊपर कोई आउटकम अभी तक आया नहीं है। So आपके एग्रीमेंट फॉर सेल में जो लिखा है वो आपका फाइनल एरिया है, उससे 2.55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये आपका पर मंथ आपका फेडरेशन का अमाउंट आ गया FKM का। वो पैसा आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दीजिए हर महीने, बिकॉज सर ने जो कहा वो एकदम सही है कि जब 5 साल बाद जब एक साथ 5 साल का भरने का आएगा तब हमें वो अमाउंट बहुत बड़ा लगेगा। सो इसीलिए वो पैसा आप एक रिकरिंग डिपॉजिट में आपके लिए डालते जाइए, बिकॉज आज नहीं तो कल हमें वो भरना ही है। सो प्लीज सर करेक्ट, मैंने आपका एक हाँ। दूसरी बात आपने कहा कि उसके बाद कौन चलाएगा। सो उसके बाद जितने भी क्लस्टर्स और सोसाइटीज हैं उनका एक एपेक्स बॉडी बनेगा, राइट। और वो एपेक्स बॉडी जो है वो पूरे फेडरेशन को, पूरे स्टेट को, पूरे टाउनशिप को चलाएगा।
खैर वो बात की बात है, उसमें कौन आएगा क्या आएगा, वो हर एक क्लस्टर से नॉमिनेट होंगे लोग, वो आएंगे। पर अभी के लिए हमें वो पैसा बचा के रखना है, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल करना ही है, राइट? थैंक यू। केवल जरा वीकेंड के बारे में बात करो। किसी को क्वेश्चन ही नहीं है, आपको है तो आप बोलो। One second, एक अरे आपके पास 18 महीना था ना। बहुत टाइम था। See, before we move ahead, from the bottom of my heart, I would like to thank each and everyone out here who has assembled. Can we clap for ourselves? See, because this is something maybe we should have done some time back. Nevertheless, I would urge each and every member to be an active member of this whole process, right? And not only that, we would also welcome suggestions coming into our end, because see, what happens is a group of 10 or 11 people may not be having the complete domain knowledge of what is required to run a particular society. We have a good number of people out here. We have tacit knowledge sitting in this room itself. Why go out? Only thing is, we, with each other's support, let's see how best we can help get the society to its past glory, right? Whoever is the employee by the municipality or whatever committee, it change to our committee से, I just have a small request. जो भी employees हैं, like say managers, committee managers, society managers, उनकी job को problem ना हो. That's only correct. I completely agree. See, because see, let us be clear about one thing. What is changing is only the people, maybe the mindset. The basic hands will not change. Only change that we're looking at is the mindset. That's it. Nothing else. पहले इन्होंने भी जब भी आए थे उसमें इलेक्शन लॉस किया था, वेरी कम फ्यू डेज में मैनेजर I think we are done now. Anything else that there was no election. अगर किसी ने साइन नहीं किया है, नीरज जी के पास डॉक्यूमेंट है, अगर किसी ने साइन नहीं किया है, चाहे आप 4 में करना चाहते हो, 4 इन द सेंस अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हो या आपको डिसॉल्व नहीं करना है, इवन इफ यू सपोर्ट द करंट कमिटी, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, जैसे हमारे सब लोग बोलते हैं। यहाँ पर नीरज जी के पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपको जाना है प्लीज वो साइन करके जाइएगा, दैट इज ओनली रिक्वेस्ट। थैंक यू जेंटलमैन लेडीज। हाँ, सबने करना है, जो भी सबने साइन करके जाना है, 2 और 4 व्हाटएवर इट इज। अगर किसी ने साइन नहीं किया है तो प्लीज आप बताइए। नीरज जी, इस तरफ बहुत सारे लोग बाकी हैं। My question to this new committee. See, thing is that we were told long time back is the existing committee that some kind of financial irregularities has been done by the earlier committee. My question to this committee is that how many members are from previous committee into this interim committee, and if there are there, what kind of we can say there is no conflict of interest, or whatever the new committee there will be no lobbying for any kind of a new elections been done, because it is very important, because we are what is happening is that the new committee, the existing committee is is always old committee, and again the old committee is if in the same thing, then we will never come to know what is actually happening to this. Absolutely, sir. So I have one very simple, and I think I request whoever is in this interim committee, who are the old members? So शिखा जी, पवन जी, पल्लवी जी, आदित्य जी, राजन जी एंड मीनू, ये 5 लोग थे जो PMC मतलब प्रोविजनल मैनेजमेंट कमेटी में थे, और वो लोग अभी भी इस पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हावेवर मैं आज फिर मतलब आपकी बात को इज्जत देते हुए, अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है, वी डोंट वांट any one of us do not want to be a part of the committee, we are only here to fill up the vacuum. अगर किसी को एक भी ऑब्जेक्शन होगा सर, एक भी ऑब्जेक्शन होगा, all 5 of them, I guarantee on behalf of them, we will not stand for the new committee. I think सारे लोग केवल जी एक मिनट अरे सारे केवल जी मेरे ख्याल से सारे लोग उतने वोकल नहीं होते, शायद उनका ऑब्जेक्शन हो भी तो अभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट जैसे केवल जी ने कहा, ये सिर्फ टेम्पररी 3 महीने की कमिटी है। We have a democratic process of elections which will be held after 3 months.
anyone who intend to participate come forward. किसी को blame करना easy है कि ये ठीक से manage नहीं करता. आप आगे आइए, participate कीजिए, election में जीतिए और आ जाइए committee में. All. I like to present one fact. There is a re-audit of the account going on with DDR with the present PMC committee. So they should not be included in the account. Okay. So That is my request only. Re-audit So आप नए कमेटी को करो, हमको कुछ बात है पर जुना कमेटी का काम नहीं होना चाहिए. Because they are re-audit going to happen and there might be some. एक मिनट, अगर मेजोरिटी ऑफ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, we will not, these 5 people will not. Anybody support this statement? Anybody support this statement? अगर ना है तो ना बोलिए. When we joined, unfortunately the meeting already had started. What I request is, a life has been lost. Akansha, a life has been lost. A life has been lost. Can we stand up in remembrance of that life? Can we all stand up in remembrance of that life, please? Thanks a lot. So, as Keval sometime back has already narrated the flow of events, so we'll go according to that. Maybe in a day or two, you'll also get a complete detail as to how we plan to proceed, right? If there's nothing else remaining, I would once again like to thank. Please ensure that the whole thing is not there in the thing PMC का नहीं होना चाहिए. I sincerely request. Because इससे काफी गोलमाल हुआ है. जनता का रिपोर्ट दिखाओ. Okay. All right. It's okay. It's okay. Calm down. वो तो करेगा ही ना. उसको तो करना है. I think it's ये देखो इतना ज़्यादा अहमद बना है. नहीं देखेंगे. अरे आप पैसे के महीने बाद हो. I think the beginning is over. The fight is won. It's a people swing. It's a people swing. It's a people swing. Our only concern is that the whole community should not be in the internet. Agreed. Binu, Pallavi ji, अभी 3 महीने के लिए we will not be a part of the management committee. Is it okay with you guys? Is it okay with you guys? So the previous management committee will not be a part of the interim committee. Clear? और क्या चाहिए? Okay, guys, I think we need to move on. We need to move on from here. The previous committee, it's okay. I think they are very gracefully thanked them for their community service. Thank you so much. I think we need to move on from here. 3 words I'll just mention. First, I think we need to focus on recovery and restoration. First, being a victim itself, we live in Wing 8 and we understand in what condition we are living. I stay in one of the higher courts. We live in constant fear with our family. Okay? So not to scare anyone, the point is, I would definitely urge the current interim committee to focus on the recovery. I'm sure they're going to do. I'm very happy to see all the experienced people there. People with domain experts, which was completely lacking, and that's why we're getting very vague answers, very wrong answers. Okay, that's one. Second point, I think risk. Whether it is financial risk, safety, all those things have happened, right? To me, it was kind of a dereliction of duty. Communication will come later. There was inaction. There was inaction for 15 days. And we saw one more example today, very casual approach. Somebody is giving numbers here in an AGM when people are asking them. These are our numbers, our money, hard-earned money. We are paying the monthly maintenance, right? Why those numbers were not shared formally? There are a lot of channels. I'll not again get into those. Even people are happily deleting the channels without any rhyme or reason.
ridiculous, absolutely ridiculous. Third point is that I think respect. Talk respectfully, act accordingly. That's it. It's a people's society, cooperative society. It's nobody's personal thing, right? And no DDR is going to do anything, boss. It's a way going to elect. DDR is not going to do anything here. हमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके छोड़ना चाहिए और दूसरे को देना चाहिए। यदि जरूरत पड़ता है तो ये करना चाहिए और ये इसके लिए हमें लीगल प्रोसेस में जाना पड़ता है। That's the failure of our society. If the every public is agreeing to something, ये तो हम क्यों बातें करते हैं ऐसे? हम सीधा शिफ्ट करते हैं दूसरे को और हम अपना सोसाइटी चलाएंगे, हमारा फैमिली जैसा है, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं हमारे साथ। वेरी गुड, सही बात बोली। ये आपने बहुत अच्छी बात की है और आई सपोर्ट यू ऑल, ट्रस्ट मी। आप प्लीज जो भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, इट विल बी वेलकमिंग एंड रेस्पेक्टफुली वी विल टेक द डिसीजन, राइट? वी हैव टू टेक द डिसीजन फॉर द पीपल, नॉट फॉर अस। वी आर नॉट इंडिविजुअली। अगर मैं एक पोजीशन पे हूँ तो मैं उसमें अपना ईगो दिखाऊंगा या डिसरिस्पेक्ट करूंगा, गाली गलौज करूंगा, ये नहीं चल सकता। इट्स अ पीपल, इट्स अ डेमोक्रेसी। हम लोग सब यहाँ पे डेमोक्रेटिक पीपल है। कोई अपना EMI भर रहा है, रेंट भर रहा है, टैक्स भर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। हेलो, मुझे भी ये पॉइंट रखना है कि ये मैं पिछले 7-8 साल से जब से हम रह रहे हैं, हमें थोड़ा ये इशू है कि अगर किसी फ्लैट की वजह से नीचे या इधर उधर कहीं कोई परेशानी आ रही है तो उसका कोई प्लान नहीं होता है सोसाइटी के पास कि उसमें कैसे एक्सेस करें। कि वो कहते थे चाबी नहीं मिल रही, फोन नहीं उठा रहा ओनर, और उसकी वजह से अगर नीचे फ्लैट वगैरह में कोई नुकसान होता है तो वो कौन बियर करेगा? आप 3-3, 4-4 महीने अगर यही लेते रहोगे, मान लो चलो पानी सीलन आ रही है, कुछ भी हो रहा है, वो भी हालांकि नुकसान तो नुकसान ही है, लेकिन अगर बाई चांस फायर लग गया उस घर में और एक्सेस ही नहीं है, मैनेजर को पूछो, फोन नहीं उठा रहे, जो ओनर है फोन उठा रहा है तो वो चाबी नहीं भेज रहा, तो इसके लिए तो कोई आपको कंक्रीट प्लान बनाना ही पड़ेगा और ये सबसे मतलब फर्स्ट लिस्ट में रखिए। और ये SOP बनाएंगे, हम SOP बनाएंगे, हम फोकस करेंगे इसके ऊपर जो इन्होंने लैक्स किया है। इसके लिए अक्षय जी, इसके लिए देखो 5 लोग ऑलरेडी नई कमेटी, इंटरिम कमेटी में से भी बाहर हो गए हैं, जैसे हमारे अर्स्टवाइल चेयरमैन साहब ने कहा, तो मुझे और 6-7 लोग प्लीज आप नॉमिनेट करो, प्लीज कम एंड यू नो वी शुड मेक इट प्रॉपर। अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें आकर करने के लिए, मैं जा साहब आपको रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, मैडम आप आ जाइए अभी के लिए। जा साहब प्लीज, जा साहब आई रिक्वेस्ट यू हैव गौरव प्लीज कम सर प्लीज। प्रशांत माने जी, मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। एसोसिएट मेंबर हैं, एनी एसोसिएट मेंबर कैन जो हमारे चेयरमैन साहब जो पहले थे वो भी एसोसिएट मेंबर हैं, तो ये भी आ सकते हैं, राइट? करेक्ट, थैंक यू। सो आई थिंक 3 लोग आए हैं मेरे पास, मुझे और 2 लोग प्लीज गाइस, प्लीज सर प्लीज कम फॉरवर्ड, वी विल नीड योर गाइडेंस। जा साहब आ गए, so we have got 4 people now. सर थैंक यू। सो भाई 5 PMC जो इनको ऑब्जेक्शन था उनको हमने अभी के लिए निकाल दिया है, राइट? दैट शोज द ट्रांसपेरेंसी गाइस। और उसके अलावा हम लोगों ने 5 और नए लोगों को इंटरिम कमेटी में ऐड कर दिया है। इज दिस कमिटी ओके विद ऑल ऑफ यू? So this is the power of unity. Thank you all. Really appreciate from bottom of my heart. Trust me. Thank you to all the females, ladies, especially coming here and contributing your time. आज शक्ति आप लोगों से ही मिलती है, आपने ये प्रूव किया। Trust me. देवी माता का हमको ऊपर आशीर्वाद आप लोगों की वजह से, और हम सबके साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर गलती हुई तो आप बता देना कि हाँ गलती है, करेक्ट करेंगे, लेकिन कोई एरोगेंसी, एटीट्यूड नहीं चलेगा। ये हम सब एक परिवार ही है, करेक्ट? हमने सेक्रेटरी और चेयरमैन, वो कोई कंपनी का चेयरमैन नहीं है, करेक्ट?
हम एक सोसाइटी के चेयरमैन है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो प्लीज एक और सजेशन जो मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है, देयर इज नो गैदरिंग, देयर इज नो सोशल इवेंट्स। सर हम करते थे, जैसे गणपति का इवेंट दूसरी जगह हो रहा है, होली जैसा होली, हमको दूसरे के मीटिंग में जाना है। भाई मैं आऊँ क्या? guys, मेरी सोसाइटी your point is noted. Neha Gaitonde ji has volunteered to be the part of the committee. Please clap for her. Neeraj ji. होली के समय बोलते हैं फंड नहीं है। 2018 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि होली के लिए चंदा ले रहे हो, चंदा भी 1500, इसमें मैं मेहंदी जाके होली खेल भी आ सकता हूँ। अच्छा, अनुष्का जी ने भी वॉलंटियर किया है। सी दिस इज द पावर गाइस। अनुष्का जी ने भी वॉलंटियर किया है। शी इज फ्रॉम विंग 9। प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सो ऑल द स्टाफ, हनीफ, द मैनेजर्स, हाउसकीपिंग गाइस, यू विल बी असाइन। आप लोगों को नया टीम मिलेगा, सब कमेटी मिलेगा काम करने के लिए। कल से उनके साथ काम करना है, राइट? ये अभी मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ। कल सुबह आपको और कोई ऑब्जेक्शन होगा या कुछ है तो आज ही बताइए, कल नहीं चाहिए मुझे। और आप लोगों में से कुछ भी मिसबिहेव या कुछ नहीं चलेगा। हनीफ जी, ट्रांसपेरेंसी आप लोगों से भी चाहिए। one point I wanted to put, guys, I have been attending all the SGMs. Okay. I have been attending all the SGMs, and every time there have been various figures which have been shown. Okay. So we are confused. Which are the exact figures? Okay. Which is the balance sheet? So what I suggest is, after the new committee comes, we do a forensic audit of the entire books. A forensic audit. Okay. सिक्योरिटी ने भी ओके बोला है, राइट? सो दैट इज टू बी नोटेड। थैंक यू। एक क्वेश्चन, सोसाइटी का डे टू डे अफेयर्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए यस रहेगा बिकॉज ऑफ 3 months ऑफ ट्रांजिशन एंड ऑल, क्योंकि ये देखा गया है को टाइम ये नहीं होना चाहिए। यस, एक रिक्वेस्ट, देयर आर ए पॉइंट, देयर आर इंट्राक्ट्स गिवन टू हाउसकीपिंग। आपका डे टू डे में आपको क्या है? नंबर 1 इज योर कचरा, राइट? वो अल्टीमेटली, इसीलिए मैंने अभी आप सबके सामने हाउसकीपिंग को मैंने बोला है आपका चलना चाहिए। यू विल बी रिपोर्टिंग टू अ न्यू कमिटी, वो कल तक उनको मिल जाएगा, राइट? उसके अलावा आपका पानी एमपी वाले यहाँ पर नहीं है, पर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मिलो उनको तो आप बताओ that this is the case, and क्योंकि क्या होगा अभी बहुत सारा पॉलिटिक्स होगा आगे पीछे, उसको नहीं करने का, तेरा चेक में साइन करने वाला हूँ वगैरह वगैरह। सर वो तो आप उनको बताइए सब लोग प्लीज। See, handover takeover तभी पॉसिबल है। हाँ, देखिए ये तभी पॉसिबल है क्लियरली और प्रॉपरली होना, ट्रांसपेरेंटली उधर से, जब एक इंटेंट है सामने भी, ठीक है? एंड आई थिंक वी ऑल एग्री दैट हम लोग ये सब एक पॉजिटिव और अच्छे इंटेंट से कर रहे हैं, ठीक है? सो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पुरानी जो कमेटी से कि जो भी नई कमेटी बन रही अभी है, उसको प्लीज आप अपना कोऑपरेशन करो। दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट। 3 महीने तक प्लीज, जब तक इंटरिम है, प्लीज कोऑपरेट करो आप लोग, ठीक है? हाँ प्लीज, जो भी कॉर्पोरेशन आपको पीएमसी से मिला था हेड ऑफ द विल डू मोर। ऐसा नहीं है, ये गलत एटीट्यूड है, ये गलत एटीट्यूड है। देखिए अगर हम लोग फिर से दीपेंद्र जी प्लीज अनिल, see what I suggest is any which में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? We will take up the responsibility, take it from ground zero and build it up. जहाँ दिक्कत है, we cooperate. See, because we will not want to listen to this shit every time here. We will start a press if required. We will start a press. Good one. ये cooperate नहीं करेंगे. Very good one. नहीं वो तो डेफिनेटली डोंट एक्सपेक्ट। वन मोर पॉइंट, हमें आप सबसे पूरी सोसाइटी से भी सपोर्ट चाहिए कि कितना भी कमेटी ने भी बोला आप लोगों अपना स्टेयर्स क्लियर नहीं रखते, एग्जिट फायर आप क्लीन नहीं रखते, क्यों? किसके लिए? किस इंसिडेंट का वेट कर रहे हैं आप लोग? एक्सीडेंट का वेट कर रहे हैं। मैं इसको 7 साल से 8 साल से लिस्ट बनवा के हाउसकीपिंग
से बनवाती हूँ और देती हूँ, हम लोग खुद भी घर गए हैं कि अपने ये सब फुटवेयर फैला के ना रखो, स्टेयर्स का रास्ता तो कम से कम क्लीन करो। आपको ही नुकसान होगा, मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर मरने के लिए। अब मेरा अपना घर का सामने क्लीन रहेगा तो वो मेरे लिए सेफ्टी है, आपको ही परेशानी होगी, लेकिन कोई असर नहीं होता लोगों को। वो कहते नहीं अब आप चप्पल बाहर ही रखेंगे, अंदर अरे रखो, अरेंज रीअरेंज करो, लेकिन अपने दरवाजे में आप स्टेयर्स की जो फायर एग्जिट है उसको नहीं ब्लॉक कर सकते, तो उसके लिए इस कमेटी को पेनल्टी या जो भी है। Just to add on to what she is saying, a request to all the residents, ये जो जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टी है ना, लिफ्ट, स्टेयर्स, ये सारी हमारी है, तो उसको साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली हमारी भी होगी। लिफ्ट में पॉपकॉर्न फॉलिंग डाउन, bits of paper falling down doesn't look good. So there are certain cases which even we will have to ensure that उसकी जिम्मेदारी हम लें। नहीं, लिफ्ट तक आ रहे हैं शूरैक लोगों के, लिफ्ट के दरवाजे तक आ रहे हैं शूरैक, वहाँ हम देखते हैं, वो उनको ही हर्डल करेगा, हमको नहीं हिंडर करेगा। इस पर ध्यान दो, आप सबका सपोर्ट चाहिए इस चीज के लिए। One more, I have to tell regarding the handing over and taking over. There need to be a handing over and taking over policy. The reason is that if the proper handing over, taking over policy is not there, again the situation will remain. It will go back. It will go back to the circular thing. It will not. We will not able to. इसको ठीक से नहीं किया जाएगा. तो अगर हम बोलते हैं कि we will do it from the ground, I personally believe, especially on financial matters, जो vouchers बने हैं, bills बने हैं, tenders बने हैं, contracts बने हैं, जो भी है, they have to support us. Because इसमें बहुत सारे इशू हो सकते हैं, because टेंडरिंग ठीक से नहीं हुई है, बिलिंग ठीक से नहीं हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्टर आ गया कि मेरा पेमेंट रह गया है, या किसी का एडिशनल पेमेंट हो गया है, या some irregularities in finance. Everything has to be handing over in proper way. Otherwise हम कितनी भी कमिटी बनाएं, ये सक्सेस होने वाला नहीं है। तो हैंडिंग ओवर पॉलिसी होना चाहिए। I completely agree. What I meant was work should not stop, और खाना पूर्ति का काम नहीं करेंगे, ये हमारे पास नहीं आया तो हम अगली मीटिंग में रुके रहेंगे। No. What we are trying to say is we will, जहाँ issues हैं, we will try to go to the concerned authority or people and try to get it sorted. If not, then maybe we start from ground zero. There will be a month or two जहाँ पे थोड़ा handover का teething problems होंगे। One request to everyone here, guys. One request to everyone here. People have kept cycles in all the staircases. When the incident happened, I was walking down the stairs and I was going to fall because of the cycles which are kept. So kindly remove all the cycles from the staircases. जो साइकिल्स वगैरह जो है, see footwears and all people have to take it inside, even cycles. But बहुत लोगों के पास 1 BHK है, वो पूरा सॉइल साइकिल के अंदर नहीं रख सकते, उसके लिए कुछ नीचे प्रोविजन एटलीस्ट करना चाहिए। This is what I. एक सेकंड। What I suggest now, we are now getting into micro. Let's not get into micro right now, right? So can we dissolve the meeting for now? Yeah. So once again, let's clap for each other. The gentlemen who have you all signed the document that was circulated? It's still there with Neeraj. If you have not, kindly sign it. And all people who have given the names for the new committee, they are requested to please stay back. And for others, the meeting gets adjourned. Thanks for that.
खालून घे Devinder and Akanksha to help us with the email ID and the password for Casa Fresco. Devinder and Akanksha, could you kindly share the email ID and the password for the Casa Fresco ID?